Okay. Hi everybody, how's everyone doing? So here I, Dr. Gitanjali Sharma, I welcome you to Talking Textbooks Quota Live, leaving no child behind. So I hope सबकी सब अपने घरों पे हो, safe पे हो, you're doing healthy, fit and fine, and so as your family, right? So students, as you know about the platform of Talking Textbooks, सब लोग बातें करते ही हैं इसके बारे में, है ना? So you get to know a lot of information already about the platform of Talking Textbooks, but then again, we've got lot many students who are being added up regularly, है ना? So for them, I'll just rewind it, okay, a bit quickly. So बच्चों, Talking Textbooks is a platform which not only gets you prepared for your school examinations from your class 6 to 10, but also for your examinations such as NTSC, NSEJS and PRMO. और उसके अलावा आपके ओलम्पियाड्स, ठीक है? कैसे ओलम्पियाड 6, 7 एंड 8 गाइस, ये जो एग्जामिनेशंस होते हैं ना अपार्ट फ्रॉम योर स्कूल, सो अगर आपको थोड़ा सा और नॉलेजेबल बनने का and you know थोड़ा सा school examinations से a little bit more upper level examinations, high level examinations if you wish to fight, so the platform of Talking Textbooks is always right there to guide you, all right? And then these are all those faces you guys know already who are there in your journey to support you ahead. This is the excellent team of Talking Textbooks. So okay, so my utmost pleasure in again introducing these faces to you guys, but आप लोगों को इनके बारे में पता ही है. So moving ahead, जिनको इनके बारे में नहीं पता है, so hi, this is me, Dr. Geet or Dr. Gitanjali Sharma. So this is a little bit introduction about myself, बहुत छोटा सा, okay? जिनको मेरे बारे में पता है, नहीं पता है, वापस से जान लो, ठीक है? सो या मूविंग अहेड, दिस इज़ दी टेलीग्राम हैंडल. सोशल मीडिया बहुत ही ऊट पटांग कामों के लिए हम लोग यूज़ में लेते हैं, फालतू का स्ट्रीमिंग, स्क्रोलिंग, ठीक है? तो लेट अस जस्ट मेक अ वेरी गुड यूज़ ऑफ इट जब बात आती है हमारे स्टडीज़ को लेके. सो दिस इज़ दी टेलीग्राम आइकन, कैन यू सी इट हियर? सो यहाँ पे यू गेट टू know about the handle, the telegram handle of your Tagging Textbooks as a platform as well. बच्चों, why am I telling you this is an important information. यहाँ पे ही आपको TTB के सारे जो sample material है, module, your DPPs, everything you get here, ठीक है? And the links for the different classes has been provided to you guys, so easily accessible. आप यहाँ पे जाके देख सकते हो what exactly is hidden in the treasure of Talking Textbooks, ठीक है? And then moving ahead, अगर आपको अच्छा लगता है, straight forward jump to the www.talkingtextbooks.in, which is the official website of Talking Textbooks Quota Live, ठीक है? आपकी convenience के लिए यहाँ पे दो पैकेजेस हम लोगों ने डिज़ाइन किया है. So can you look here? See, this is the purple colored box and then the red one. जो भी आपको अच्छा लगता है, just click on the buy now and then of course you're getting a 30% instant discount using my code, which is GS Live. So make use of it, enter the code, and then we have provided each and every possible method of payment. Credit है, debit है, net banking है, wallet है, whichever suits your parents the best, please make use of it. उनको बोलिए and then you can just get this material to you, all right? Now अभी हम करेंगे खुद से promise. क्या करेंगे हम लोग? खुद से promise, the ritual of TTV, that is the cardinal promise, okay? Making a promise to ourselves that we would be what? Extremely, utterly sincere in the entire lecture, all right? So chalo, let's go. So I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it, so that I can become a smart student, which I already know my kiddos are already very, very smart and brilliant, but what's wrong in getting a little bit more extra every day, isn't it? है ना? थोड़ा थोड़ा खुद को boost up करते रहना चाहिए, isn't it? So there we go, starting with our lecture number 9, which is movement in animals, ठीक है? बच्चों, ये लेक्चर हम क्यों पढ़ रहे हैं? Why are we exactly? Why the hell are we studying this lecture, man? हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में? And that is because हमारी अर्थ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, you know, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, मतलब हर तरीके के प्राणी हैं,
ठीक है, और हर किसी को क्या करना होता है, इधर से उधर मूवमेंट, इधर से उधर मोशन, इजंट इट, है ना, करना होता है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो बच्चों हम किसकी हेल्प से मूव करते हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर फीट, लेग्स, इजंट इट, है ना। किसी किसी के छोटे छोटे लेग्स होते हैं, किसी के लंबे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हेल्प कौन कर रहा है हमारी मूवमेंट में, हमारे लेग्स। लेकिन अगर मैं एग्जांपल लूं बर्ड्स का, how are they moving from one place to another, with the help of their wings, isn't it? Similarly माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके पास ना तो पंख होते हैं, राइट, ना ही उनके पास पैर होते हैं हमारे जैसे, है ना, लेकिन डू दे मूव, ऑफ कोर्स दे डू मूव। हाउ डू दे मूव, दे मूव थ्रू देयर अपेंडेजेस, अलग अलग तरीके के, जैसे सीलिया हो गया, फ्लैजिला हो गया, दैट वी विल सी इन दी लेक्चर्स अहेड। सो बेसिकली बच्चों अलग अलग तरीके के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स यानी कि द स्ट्रक्चर्स विच आर हेल्पिंग अस टू मूव, ठीक है, और डिस्प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जो इसमें हमें हेल्प कर रहे हैं। ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी विच आई एम गोना यूज टुडे इज गोना बी utterly important, प्लीज यहाँ पे ध्यान अपना केंद्रित रखें, ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ओके। सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, हमेशा की तरह आई एम ऑलवेज गोना हाईलाइट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू गाइस, प्लीज डू मेक नोट ऑफ इट, स्पेशली, ओके, पे अटेंशन टू इट। अब बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज़ है वो सबसे पहली बात तो ये है कि मूवमेंट और लोकोमोशन में, मूवमेंट में और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस होता है, लोकोमोशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मूवमेंट क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है। तो बच्चों मूवमेंट बेसिकली क्या होता है ना, किसी भी पार्ट का मोशन होना। जैसे if I'm talking about myself, so if I'm raising my arm this way, so see it's moving some motion, है ना, मोशन शो कर रहा है, यानी कि अपनी एक पोजीशन से खुद को क्या कर रहा है, ये हटा रहा है, राइट, you're there. But if I talk about locomotion, can this be called as a locomotion? Of course not. Suppose if I'm standing here, ठीक है, अभी मेरा पोजीशन क्या है, यहाँ पे, ओके, एंड नाउ आई एम हियर, ओके, सो अभी मेरा पोजीशन है यहाँ पे। सो बेसिकली आई एम डिस्प्लेसिंग माई सेल्फ, व्हाट, आई एम डिस्प्लेसिंग माई सेल्फ फ्रॉम हियर एंड देयर, दिस वुड बी कॉल्ड एज अ लोकोमोशन। तो बेसिकली लोकोमोशन में क्या हुआ, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऑलराइट, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से उठ के कहाँ आ गया, यहाँ पे, तो बेसिकली ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको क्या बोला गया, लोकोमोशन। लेकिन जैसे मेरा ये आर्म है, आई कैन टेक इट एनी वे, यर, बट आई एम स्टडी एट माई पोजिशन, राइट, सो इसको क्या बोला मैंने, मूवमेंट, ऑलराइट। यही चीज हम स्टडी करेंगे थ्योरी में, ऑलराइट। सो वट एवर आई एम गोना हाईलाइट, प्लीज उस चीज के ऊपर ध्यान दो एंड मेक नोट्स ऑफ इट। नाउ मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा, है ना। अगर हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ का मोशन नहीं कर रहे हैं, सो क्या हम कोई भी काम कर पाएंगे रेगुलर लाइफ में? ऑफ कोर्स नॉट, वी नीड मूवमेंट फॉर एवरीथिंग, इजंट इट, राइट? Even if I'm picking this pen up from the table, this requires motion, right? Okay, even if I'm turning there, it requires motion. Everything is motion. Earth itself is in motion every time, है ना? sun के around चक्कर काटती है, motion करती है, right? So movement जो है most important part of life in living organisms, ठीक है? अब देखो इसका definition. When an organism, please write it down, when an organism moves its organs slightly, that part is called as a movement. But when an organism shows displacement from one place to another, it is called as a locomotion, ठीक है, that is a locomotion, and then movement is a basic living characteristic, ठीक है, यानी कि this is one of the traits, okay, this is one of the traits which shows that a person or any organism is living or not. Getting my point? So please इस definition को लिख लो. So that like it's a definition both for your movement as well as your locomotion and also depicting the differences here, right? So do write it down. Come on, quick.
ठीक है, आगे चलते हैं ना, लिख लिया होगा, छोटा सा है, बहुत छोटू सा. नाउ ओके, जस्ट अ मिनट. यस, अगेन हाईलाइटिंग सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. चलो अब हम लोग बात करते हैं टोटली मूवमेंट के बारे में. All living things exhibit movement as one of their characteristics, right? ये हमने डिस्कस किया था, important living trait होता है, ठीक है. Then this act of moving a part of the body or changing its position as known as a movement. जैसा मैंने बताया, act of changing the position of a part of the body, not the entire body, right? अगर हम पूरी entire body को displace कर रहे हैं, that is locomotion. But if we are moving the part of a body, that is called as a movement, ठीक है. So this is the act of moving a part of the body or changing its position is known as a movement. But so this this theory looks a little bit more like okay, why do we need to know about this? But the thing is, when it's considered as a point, if we consider it as a point of view from your school examinations, right? So this theory is gonna help you out a lot, okay? So do make a proper note for it. For example, movement of roots towards water and movement of fingers while flicking a carom sticker. For example, ठीक है. अब जैसे यहाँ पे हम movement के examples लेते हैं. For example, जैसे roots जो हैं, एक tree है, तो does it move? क्या वो locomote, like does it move? Yes, it does move. उसके जो parts हैं, like roots हैं, ठीक है. So they grow towards the soil, isn't it? Isn't it? So it's growing towards the soil, towards the motion का हो रहा है, towards the water, right? So it's moving, but yes, it's not locomoting, right? अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है. कभी किसी पेड़ को चलते हुए देखा है क्या? नहीं, राइट? सो इट्स नॉट लोकोमोटिंग. बट येस, अगेन एक छोटू सा प्लांटलेट है, कोई छोटा सा पेड़ है, वो बड़ा हो जाता है, तो येस इट्स शोइंग मोशन, क्योंकि उसके पार्ट्स जो हैं अपनी पोजीशन से इधर उधर तो हो रहे हैं, राइट? है ना? सो दैट इज योर मूवमेंट, राइट? सो सिमिलरली we talk about our fingers whenever we are playing कैरम. सबको पसंद है ना? कैरम पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, कोई सा भी. इनफैक्ट when I'm moving this pen here on this blackboard, this is movement, right? So living things almost हर चीज में क्या शो कर रहे हैं? Movement. That's what is explained here. So when the now अब यहाँ पे एक और आपके पास डेफिनेशन है. जब एक एंटायर बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिस्प्लेस करती है तो उसको हम लोकोमोशन बोलते हैं. दिस समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इजंट इट? एंड इन द प्रीवियस स्लाइड वी डिस्कस्ड अगेन अबाउट बोथ ऑफ द डेफिनेशंस, राइट? सो अब हम लोग देख रहे हैं सम कॉमन टाइप्स ऑफ लोकोमोशंस इन एनिमल्स. कैसे लोकोमोशन होते हैं, यानी कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिसमें से हमारी पूरी डिस्प्लेस हो रही है बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लाइक when we are running, isn't it? When we are walking, when we are swimming, right? Rolling and doing lot many things, है ना? तो उस सब में क्या होती है हमारी बॉडी? यहाँ से वहाँ डिस्प्लेस होती है. लेकिन प्लांट्स जो है डू नॉट अंडरगो लोकोमोशन, क्योंकि बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है. तो ना बच्चों, ये जो एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं, कैन यू गेट माई पॉइंट? वाई एग्जैक्टली वी आर discussing all these examples? बहुत छोटी छोटी लेमी है, but the thing is this is actually explaining you the major difference between the movement and locomotion. So I hope ये अच्छे से तुम्हारे भेजे में भर गया होगा, right? कि ये क्या होता है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखो, all types of locomotions are movements. This is something important. इसको अच्छे से नोट डाउन करो कि सारी तरीके की मूवमेंट्स जो होती हैं यहाँ पे, yes, all types of locomotion are movements, but all types of movements are not locomotion. Evident है ना? Right? हर तरीके का लोकोमोशन, लोकोमोशन में मूवमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ मूवमेंट लोकोमोशन होता है क्या? नहीं, नहीं होता. ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो. अब बच्चों देखो कि मूवमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, राइट? अगेन, तो दिस कैन ऑल्सो फॉल एज अ एग्जामिनेशन क्वेश्चन इन योर स्कूल एग्जामिनेशंस, राइट? एग्जैक्टली इसका क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या है? मूवमेंट और लोकोमोशन जो है दे प्ले वेरी वाइटल रोल. कैसे? अब देखो, अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उनके प्रोटेक्शन में,
राइट, वेन एवर अ लाइन इज रनिंग बिहाइंड अ डियर, ठीक है, तो अनटिल एंड अनलेस वो लोकोमोशन नहीं करेगा, रनिंग नहीं करेगा, रनिंग इज अनदर फॉर्म ऑफ अ लोकोमोशन, राइट, ठीक है, मूवमेंट नहीं करेगा वहां से, तो खुद को सर्वाइव कर पाएगा, खुद को बचा पाएगा नहीं. सो वेरी मच इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज, है ना. सो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया, प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स फ्रॉम योर एनिमीज, ठीक है. अब खाना ढूंढने के लिए भी तो इधर से उधर जाना पड़ता है, उसके लिए भी मूवमेंट रिक्वायर्ड है. सो अगेन व्हाट, टू फाइंड फूड एंड वाटर, ठीक है. खुद के लिए अगर बहुत ज़्यादा कड़ी धूप है एंड देन दे रिक्वायर बहुत कुछ शेडी सा उनको एरिया चाहिए, कुछ अच्छा सा एक ऐसा पेड़ चाहिए, उसको ढूंढने के लिए अगेन दे नीड टू लोकोमोट, इजंट इट. सो टू फाइंड बिल्ड शेल्टर फॉर प्रोटेक्शन, राइट, okay, and then to find a mate and reproduce, again for reproductive process, okay, to find a mate and for the reproductive process again they need to move, locomote, isn't it. So these are the points, इनको लिख लो साथ साथ में, whatever I'm highlighting, very easy, okay, but then again important from the point of view of examination, all right. Now अब देखो जो हमारी movements है ना, movement जो है वो दो तरीके की होती हैं, right, है ना. पहला होता है आपका लोकोमोशन, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, क्या होता है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन टू द अदर. देन कम्स योर कर्वेचर. कर्वेचर क्या होता है बच्चों, कर्वेचर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी, ओके, कॉमनली फाउंड इन प्लांट्स एंड अ फ्यू एनिमल्स, ठीक है. यानी कि मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी पार्ट, जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी की जो एक्सिस है, ओके, द एक्सिस के अराउंड जो है एक मूवमेंट हमारे बॉडी पार्ट्स का, दैट इज कॉल्ड एज अ कर्वेचर, ऑलराइट. सो यू कैन जस्ट राइट डाउन मूवमेंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ कर्वेचर बेबीज, दैट इज मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स अलोंग द एक्सिस of the body, ठीक है. So it's found in certain animals as well as plants, okay. So I hope this point is very easy, so it's clear to you, all right. Then we'll move ahead. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट. अब बच्चों यहाँ पे हम ना कुछ ऑर्गेनिजम्स में मोड्स ऑफ लोकोमोशन देखेंगे, ठीक है. So one by one we'll take the examples of certain organisms and let's find out exactly nature ने उनको locomotion के लिए, movement के लिए क्या क्या provide करवाया है, ठीक है. And it's interesting to note, see कितना variety होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे हम पहुंच सकते हैं, right. See the nature is so diverse and so beautifully these parts have been incorporated, okay. So there we go, the very first one, modes of locomotion में सबसे पहला आता है आपका अमीबॉइड मूवमेंट, ओके. अमीबॉइड लोकोमोशन, अमीबा कैसे लोकोमोशन करता है बच्चों. सबसे पहले जो ये अमीबॉइड मूवमेंट है, क्या अमीबॉइड लोकोमोशन होता है बच्चों. ये वर्ड कहाँ से आया है, ये वर्ड आया है फ्रॉम अमीबा. अमीबा क्या होता है, दैट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्या होता है अमीबा, ठीक है, जस्ट अ मिनट. अमीबा, यस. तो देखो अमीबा जो होता है, ओके, आई डोंट थिंक इट वुड बी विजिबल टू यू गाइज, राइट. सो आई जस्ट सिलेक्ट अनदर पेन. बच्चों जस्ट कीप ऑन पेइंग अटेंशन यार, सो मत जाना कोई भी, ठीक है. पता चला मम्मा पापा सोच रहे हैं कि हाँ हमारा बच्चा क्लास ले रहा है बट ये तो सो गया है, ठीक है. इंटरेस्टिंग सा लेक्चर चल रहा है, सो प्लीज ध्यान दो. अमीबा जो होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि नेकेड आई से जिसे हम नहीं देख सकते. और किस कैटेगरी का होता है बच्चों, प्रोटोजोआ, ठीक है. इट इज अ प्रोटोजोन, सो इसलिए प्रोटोजोआ. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है ना, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, ठीक है. तो इट बिलोंग्स टू योर प्रोटोजोआ कैटेगरी, यस, ऑलराइट. सो बच्चों अमीबा में जो लोकोमोशन होता है ना, जैसे वो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है अमीबॉइड लोकोमोशन, ठीक है. एंड ये बात ध्यान देने की है दैट वो उसका जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग, स्यूडोपोडिया. क्या बोला, स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट.
स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म अमीबॉइड लोकोमोशन जैसे कि एग्जिबिट कर रहे हैं, तो बेसिकली वो किसके थ्रू लोकोमोशन कर रहे हैं, स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट, क्योंकि अमीबॉइड या फिर अमीबिक मूवमेंट का जो बोलते हैं ना कि जो इंपॉर्टेंट हीरो है जिसकी वजह से ये लोकोमोशन एग्जिस्टेंस में है, वो है स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अमीबॉइड मूवमेंट एग्जिबिट करेंगे उनमें हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है, स्यूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट का, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो थ्योरी है यहाँ पे आई एम रीडिंग इट आउट एंड जस्ट नीड टू राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। देखो सबसे पहला तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है कौन कौन से, जैसे अमीबा एंड WBCs, ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो ये लोकोमोशन जो है एग्जिबिट करते हैं, ठीक है ना। इनमें कोई डिफाइंड लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि स्यूडोपोडिया इनमें बना हुआ आ रहा है, ठीक है, नहीं, ये सिर्फ एक सेल की तरह एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब इनको लोकोमोशन करना है तो क्या करते हैं, ये अपनी ही सेल की जो ये जैसे ये सेल है, इस सेल की बाउंड्रीज से क्या बनाते हैं बच्चों, स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट, इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, तो दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ डिफाइंड स्ट्रक्चर। जैसे हमारे पास क्या होते हैं, लेग्स है, तो वी हैव डिफाइंड स्ट्रक्चर्स फॉर मूवमेंट, लेकिन इनमें ये डिफाइंड नहीं होते, ये तब बनते हैं जब इनको या तो खाना एनगल्फ करना है, खाना है, या फिर लोकोमोशन करना है, ऑलराइट। सो दे आर नॉट डिफाइंड लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, लेकिन दे मूव विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया और फॉल्स फुट या फॉल्स फीट, ठीक है। अब ये स्यूडोपोडिया क्या होते हैं बच्चों, राइट इट डाउन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस formed due to protoplasmic movement within the cell which are temporary and irregular in shape। See, देखो irregular है शेप में, है ना, और ये क्या होता है बच्चों, टेम्पररी। टेम्पररी क्यों, जैसे ही इनका मूवमेंट वहां से खत्म हुआ, वापस से फॉल्स फीट क्या कर जाएगी, पूरी बॉडी में समा जाएगी वापस से, ठीक है, नॉर्मल उस पे जो है अपने स्फीयर पे आ जाएगी, ऑलराइट। सो दिस इज व्हाट योर अमीबॉइड लोकोमोशन इज। इंपॉर्टेंट टू नोट इज बच्चों दैट ये कहाँ पे हो रहा है, विच ऑर्गेनिजम्स, योर WBCs एंड योर अमीबा, ठीक है, ऑलराइट। सो यस, नाउ मूविंग अहेड, देखो सीलियरी मोशन, यहाँ पे सीलियरी मोशन पे जाने से पहले लेट मी शो यू दिस। ये देखो ये छोटे छोटे प्रोजेक्शंस देख रहे हो यहाँ पे, कैन यू सी दिस या लाइक दिस। सो जैसे यहाँ पे हमने ये एक ऑर्गेनिज्म बनाया, तो ये जो छोटे छोटे इस तरीके से जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, इनको बेसिकली बोलते हैं सीलिया। क्या बोला जाता है बच्चों, इनको बोला जाता है सीलिया, ओके। यूजुअली बच्चों सीलिया जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, दीज आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, कैन यू मेक आउट, सी, है ना, ये जो ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। सो अब इसके लोकोमोशन में जो हेल्प कर रहे हैं, कौन हेल्प कर रहे हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो कैन यू सी हमें तो लगा था कि सिर्फ बर्ड्स इस तरीके से फ्लाई कर सकती हैं, स्नेक्स कैन क्रॉल, वी कैन मूव, बट कैन यू सी नेचर हैज गिवन सो मच ऑफ डाइवर्सिटी, कितने सारे ऑर्गेनिजम्स कितने डिफरेंट वेज से मूव करते हैं, राइट। सो मूविंग, ठीक है, ये क्या होते हैं बच्चों, हेयर लाइक एक्सटेंशंस विच आर कॉल्ड एज सीलिया। क्या होते हैं, हेयर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है, और पूरी बॉडी सरफेस से प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, है ना। सी पूरी की पूरी बॉडी सरफेस पे ये होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, दे बीट इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। पहली बात तो चलते कैसे हैं, एक ही कोऑर्डिनेटेड वे में। अगर आगे जाना है, ठीक है, आगे की तरफ जाना है, सब पीछे की तरफ जो है इस तरीके से पुश करते हैं। अगर पीछे की तरफ जाने हैं तो आगे की तरफ इनके हेयर होते हैं, लेकिन ऑल ऑफ देम वुड वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, ऑलराइट, है ना, प्रोपेलिंग द एनिमल थ्रू वाटर, मेकिंग इट ग्लाइड ओवर अ सॉलिड सरफेस, ऑलराइट। सो यहाँ ध्यान देने वाला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ये जो बना हुआ है ना, ये पैरामीशियम है। तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट सीलियरी मूवमेंट क्या होती है, सीलिया के थ्रू मूवमेंट विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, जो कि इस तरीके से बॉडी पे प्रेजेंट होगा। दूसरा वो ये पैरामीशियम एक एग्जाम्पल है जिसमें ये एग्जिबिट करता है और ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट शो करते हैं, ऑलराइट, ठीक है। मूविंग अहेड, फ्लैजिलर लोकोमोशन। बच्चों फ्लैजिला, अगेन फ्लैजिला जो होता है वो क्या होता है, व्हाट इज फ्लैजिला, दैट इज अ, फ्लैजिला होता है आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना, थ्रेड लाइक
स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म बनाऊँ, ठीक है, तो ये इस तरीके से एक सिंगल, नाउ दिस इज अ फ्लैजेला। क्या हुआ? ये एक फ्लैजेला हुआ। नाउ कैन यू मेक आउट, सी इतने सारे फ्लैजेला, ये एक रहा फ्लैजेला, यहाँ पे एक और एक फ्लैजेला, राइट, ठीक है। सो दिस इज हाउ फ्लैजेला इज। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को आगे की तरफ मूव करना है तो फ्लैजेला किधर मूव करेगा? पीछे की तरफ, ठीक है, तब जाके वो कैसे बढ़ पाएगा? ऑर्गेनिज्म जाएगा आगे। अगर ऑर्गेनिज्म को आगे बढ़ना है तो फ्लैजेला का मूवमेंट कहाँ होगा? पीछे। अगर ऑर्गेनिज्म को पीछे जाना है, पीछे की तरफ शिफ्ट करना है, तो फ्लैजेला कहाँ होगा? आगे। तो बेसिकली जिस साइड भी ऑर्गेनिज्म को मूव करना है, फ्लैजेला उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। कहाँ जाता है बच्चा लोग? अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। Okay, I hope this is clear. So let's just take a look at the theory which has been given, है ना? So the locomotion takes place with the help of long thread-like locomotory structures. कैसे होते हैं बच्चों? Thread-like. And what is that? Flagella. ठीक है? Forward and backward movements इनका help करता है movement में, ठीक है। अब ये बात ध्यान देने की है बच्चों कि देखो मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं ये? यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में। कहाँ पे? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, यूग्लिना हो गया, ओके, बैक्टीरिया हो गया, यूग्लिना हो गया। यूग्लिना इज अनदर फॉर्म ऑफ अ टाइप ऑफ अ प्रोटोजोन। क्या होता है यूग्लिना? प्रोटोजोन, ठीक है। अब बच्चों जरूरी नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में एक ही फ्लैजेला हो सकता है 2 भी हो सकता है 3 भी हो, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फ्लैजेला का जो नंबर होता है वो क्या करता है? वेरी, VARY, यानी कि इट कैन वेरी, रेंज फ्रॉम 2 to 3 to 4, इस तरीके से काफी सारे फ्लैजेला हो सकते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड। लेट अस जस्ट मूव अहेड। यहाँ पे देखो ये आ गया एक और मूवमेंट, लोकोमोशन बाय टेंटिकल्स। अब बच्चों यहाँ टेंटिकल्स क्या है? जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है किसका? हाइड्रा का। ये क्या? ये जो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म बना हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड एज योर हाइड्रा। टेंटिकल्स किसके पास होते हैं बच्चों? हाइड्रा। कैन यू सी दिस? ये देखो ये जो बने हुए हैं ना इस तरीके से लंबी लंबी जो स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर कॉल्ड एज योर टेंटिकल्स। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें कि टेंटिकल्स से मोशन कैसे हो रहा है, तो सी what's happening here is, if I zoom this for you, see what's happening here is कि देखो धीरे धीरे जो टेंटिकल्स हैं ये क्या कर रहे हैं? ये एक पूरी एक पर्टिकुलर बॉडी है, ओके। नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज कि देखो ऐसे ये बेंड होता जा रहा है ना। अब ये यहाँ बेंड होके क्या हुआ? ग्राउंड पे चिपक गया। यानी कि इस हाइड्रा को अगर यहाँ मूव करना है तो ये क्या करेगा? इन टेंटिकल्स को बेंड करेगा, ठीक है। ये ग्राउंड पे क्या होगा? स्टिक। इसकी बॉडी वापस से जो है, ठीक है, क्या होगी? देखो इस तरीके से वापस से जो है यहाँ से उठेगी, अपोजिट प्लेस पे जाएगी, ओके, एंड देन सीधी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे टेंटिकल्स जो है हेल्प करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं? पूरी बॉडी का लोकोमोशन करवा रहे हैं वन प्लेस टू अनदर बाय स्टिकिंग देयर टेंटिकल्स ऑन दी ग्राउंड, ओके, है ना, इस तरीके से। गेटिंग माई पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस लुक एट द थ्योरी व्हाट्स बीन गिवन हियर कि ये कहाँ पे हो रही है बच्चों? यूजुअली सीलेंट्रेटा। एक आप आगे पढ़ोगे क्लासेस में जाके, ठीक है, जब एनिमल्स का क्लासिफिकेशन देखोगे ना, तो देयर इज अ फाइलम विच इज कॉल्ड एज सीलेंट्रेटा। ध्यान देने की बात क्या है यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड याद रखो कि सीलेंट्रेटा फाइलम। जस्ट रिमेंबर दिस, सीलेंट्रेटा जो है उनमें लोकोमोशन किनके थ्रू हो रहा है बच्चा? टेंटिकल्स, ओके। कैसे कर रहा है? दे हेल्प इन लूपिंग। बेसिकली क्या कर रहे हैं? लूप कर रहे हैं ना। एंड सोमरसॉल्टिंग। क्या हो रहा है? लूपिंग एंड सोमरसॉल्टिंग। सो इस पॉइंट को याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, लूपिंग एंड सोमरसॉल्टिंग, ठीक है। टेंटिकल से मोशन कैसे होता है? बाय लूपिंग एंड सोमरसॉल्टिंग। ऑलराइट, एग्जाम्पल इज हाइड्रा, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको लिखो। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों कि इनका यहाँ पे जो माउथ है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या बने? टेंटिकल्स।
बेंड होगा, हुप करेगा, समरसॉल्ट करेगा एंड देन उसके बाद ये बॉडी हुई ऊपर एंड देन जहां पे इनको खड़े होना है ना वहां पे जो है वापस से बॉडी इनकी इरेक्ट हो जाती है। सी किस तरीके से यहां से लेके यहां पे ये इस तरीके से क्या शो करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, योर एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, अब हम आगे बात करते हैं लोकोमोशन इन वेरियस एनिमल्स। अब बच्चों अब हम लोग और बड़े लेवल पे बात करेंगे। ठीक है, उसमें आता है पहला आपका विच इज इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं बच्चों, वो एनिमल्स जिनका वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। क्या नहीं होता, वर्टिब्रल कॉलम। अभी हम लोग स्ट्रेट हैं, किसकी वजह से हैं, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट वर्टिब्रल कॉलम, सो वी आर वर्टिब्रेट्स। नाउ दे आर एनिमल्स जिनका वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, उनको क्या बोलेंगे, इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, सो इनवर्टिब्रेट्स या फिर जिनके पास बैकबोन नहीं है। ठीक है, विच डू नॉट विदाउट अ वर्टिब्रल कॉलम, ओके, और बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। तो चलो उनका हम लोग लोकोमोशन देखते हैं कि बेसिकली उनमें किस तरीके से लोकोमोशन होता है। उसमें सबसे पहला है अर्थवॉर्म। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट टू नोट, इसके बारे में मैं जो पढ़ती जा रही हूँ ना उसके ऊपर अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, क्या देखो जो हमारे अर्थवॉर्म्स होते हैं ना बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, इनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स को क्या बोलोगे आप, What will they be called as? सीटे, SETAE। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये उनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स क्या हो गए, सीटे, है ना, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, उनकी बॉडी के बिलो। ऑल राइट, एंड व्हाट आर दीज, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, कैसे होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं, दीज आर स्पेशल मसल्स एंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्या होते हैं, दीज आर मस्क्यूलर स्ट्रक्चर्स। क्या होते हैं सीटे, दे आर मस्क्यूलर स्ट्रक्चर, दे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स एंड मस्क्यूलर। ठीक है, तो बॉडी जो होती है ना, देखो अर्थवॉर्म की, कैन यू सी, इतने सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। देखो कितने सारे सेगमेंट्स है ना, इतने सारे, कैन यू सी, अगर आप किसी अर्थवॉर्म को ऐसे भी देखोगे तो काफी सारे सेगमेंट्स में उसकी बॉडी जो है डिवाइड होती है। और ये जो सीटे हैं ना बच्चों, ऑलमोस्ट इन सारे सेगमेंट्स में होते हैं, सारे सेगमेंट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, ये सीटे होते हैं। ठीक है, उसके बाद द सीटे आर अटैच्ड टू टू टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी वॉल, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अब देखो इनकी बॉडी पे ना दो तरीके की क्या होती है, मसल्स होंगी। ठीक है, दो तरीके की, कैसी, वन इज योर सर्कुलर and one is your longitudinal, circular muscles and longitudinal muscles। ठीक है, तो ये जो सीटे हैं ना, ये इन दोनों टाइप की मसल से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ठीक है, दोनों ही टाइप की जो मसल्स हैं वो अटैच होते हैं। तो अर्थवॉर्म पहले क्या करता है, ये इसके एक पोर्शन को ग्राउंड से अटैच करता है विद द हेल्प ऑफ द सीटे। ठीक है, एंड देन उसके बाद अपनी बॉडी का एक फ्रंट पार्ट जो है उसको क्या करेगा, थोड़ा एक्सटेंड करेगा, है ना। तो ये एक्सटेंशन जो है ये किसकी हेल्प से आता है बच्चों, ये जो एक्सटेंशन है ये आएगा, एक्सटेंशन किससे आएगा, सर्कुलर मसल्स। ठीक है, सर्कुलर मसल्स की हेल्प से। ठीक है, एक्सक्यूज मी, ओके। सो सबसे पहले तो ये अपना कुछ पोर्शन ग्राउंड से अटैच करेगा। ठीक है, उसके बाद सीटे की हेल्प से, है ना, ये अपनी बॉडी का जो फ्रंट पार्ट है उसको क्या करता है, एक्सटेंड करता है। और ये किसकी हेल्प से होता है बच्चों, सर्कुलर मसल्स की हेल्प से, है ना। और सर्कुलर मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, मेकिंग द बॉडी थिनर एंड लॉन्गर। ठीक है, यानी कि बॉडी को थिन और लंबा बनाती है। ठीक है, उसके बाद अर्थवॉर्म क्या करेगा, इट वुड फिक्स द फ्रंट पोर्शन टू द ग्राउंड एंड रिलीज द पियर एंड। ठीक है, फिर फ्रंट पोर्शन को ही फिक्स करेगा, पीछे का पोर्शन जो है इसको रिलीज कर देगा, है ना। अब उसको रिलीज कर देगा तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, आगे बढ़ जाएगा, राइट, है ना। ओके, so then the longitudinal muscles contract, make the body thicker and shorter. ठीक है, making the body thicker and shorter. Working together, these muscles push the organism forward. Earthworms also secrete a slimy substance that help them to move easily. एक बार को ये लाइन नोट करो, Earthworms also secrete a slimy substance that help them to move easily. तो देखो पहले क्या हो रहा है बच्चों कि ये जो आपके सीटे हैं, ठीक है, कैन यू सी दिस, छोटे 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 यहाँ पे प्रोजेक्शंस, यहाँ पे देखो एकदम नन्हे मुन्ने से, कैन यू सी इतने छोटे छोटे से प्रोजेक्शंस जो हैं। ठीक है, पहले क्या कर रहा है अर्थवॉर्म, खुद की सीटे से उस बॉडी, अपनी बॉडी को जो है ग्राउंड पे अटैच कर रहा है। ठीक है, देन अपना आगे वाला आप देखते हो उसको इस तरीके से करके जो है अर्थवॉर्म आगे चलता है ना।
सो हाउ इज इट गोना डू इज, पहले इसके सर्कुलर मसल्स वर्क करेंगे, देन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स वर्क करेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो है ये आगे बढ़ता चला जाता है। ऑलराइट, तो वापस से पढ़ते हैं। सबसे पहले अर्थवर्म क्या करेगा, अपना पियर पोर्शन को यहाँ से जो है फिक्स करेगा, एंड देन जो अपनी बॉडी का फ्रंट पार्ट जो है उसको एक्सटेंड करता है। क्या करता है बच्चों, एक्सटेंड करता है, यानी कि एक जगह यहाँ पे इसने फिक्स किया, फ्रंट पार्ट बॉडी का एक्सटेंड किया, ठीक है, किसकी हेल्प से, सर्कुलर मसल्स की हेल्प से, ठीक है, जिससे वो क्या कर रहा है, लंबा हो रहा है और थिन, पतला होता जा रहा है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अर्थवर्म अपना आगे वाला जो पार्ट है, ठीक है, फ्रंट पार्ट को जब वो एक जगह पहुंच जाएगा उसको फिक्स करेगा ग्राउंड से, फिर पियर एंड को जो है वो क्या करता है, रिलीज करता है। कैसे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होती है और इस तरीके से पहले सर्कुलर से लंबा, लॉन्गिट्यूडनल से फिर छोटा, सर्कुलर से लंबा, लॉन्गिट्यूडनल से फिर छोटा, ऐसे इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से ये आगे बढ़ता जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस वॉज द लोकोमोशन इन योर अर्थवर्म। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंसेक्ट्स, यहाँ पे आता है लोकोमोशन इन योर इंसेक्ट्स, ठीक है बच्चों। इंसेक्ट्स पे लोकोमोशन के लिए सबसे अच्छा आपके पास जो है, वी नो कि सारे इंसेक्ट्स डू फ्लाई, राइट, है ना। सो पेयर ऑफ विंग्स तो इनके पास होता ही है, लेकिन पेयर ऑफ लेग्स भी होता है। नाउ लेट अस सी, जैसे कि इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ बटरफ्लाई एंड ग्रास हॉपर, ठीक है, बटरफ्लाई और ग्रास हॉपर जो है उनके पास क्या होते हैं, विंग्स, है ना। सो मोस्टली इंसेक्ट्स हैव 2 पेयर ऑफ विंग्स, ठीक है, सबके पास कितने पेयर होते हैं विंग्स के, 2 पेयर में मतलब कि 2। नाउ दे हैव गॉट 2 पेयर ऑफ विंग्स, यानी कि 4 विंग्स। कितने हुए, 2 पेयर ऑफ विंग्स का मतलब कितना हो गया बच्चों, 4 विंग्स, ठीक है, इनके पास होता है। ऑल राइट, सो अब जैसे मस्कीटो है, उनके पास सिर्फ कितना होता है, राइट डाउन दिस, मस्कीटो है ओनली 1 पेयर ऑफ विंग्स, है ना, यानी कि सिर्फ 2 ही विंग्स होते हैं उनके पास, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस देख रहे हो आप, यूजुअली इंसेक्ट्स के पास 2 पेयर ऑफ विंग्स होता है, लेकिन मस्कीटो जो है उसके पास कितना है, ओनली 1 पेयर ऑफ विंग्स। अब जैसे इंसेक्ट्स है, जैसे एंट एंड लाउज, ठीक है, उनके पास जैसे एंट होती है, लाउज है, दे आर इंसेक्ट्स, दे कैन नॉट फ्लाई, तो उनके पास विंग्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। और ये भी है कि इन इंसेक्ट्स के पास यू हैव गॉट 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, ठीक है। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके पास लेग्स भी हैं। तो बेसिकली इंसेक्ट्स के पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स क्या क्या हो गए बच्चों, किसी के पास विंग्स हो गए, किसी के पास विंग्स प्लस लेग्स हो गए, किसी के पास सिर्फ लेग्स। एंड हाउ मेनी पेयर ऑफ लेग्स आर देयर, देयर आर 3, ओके, यानी कि 6 इन टोटल। हाउ मेनी, 6 in total, all right, that helps them to move from one place to another, ठीक है, okay, so this was about the insects, ठीक है। Now moving ahead, भाई कॉकरोच, oh god this is disgusting, I don't like cockroaches at all, पता है मुझे बहुत डर लगता है सच में कॉकरोचेस से, oh god ठीक है, because you know they're scary, like especially कॉकरोचेज ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनसे मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। गॉश, आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बट आई एम वेरी मच स्कैर्ड। इन फैक्ट अगर कहीं पे दिख जाएगा तो आई वोंट इवन एंटर दैट प्लेस। सो यस, अब बच्चों कॉकरोच जो है हैज़ गॉट जॉइंटेड अपेंडेजेस। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अपेंडेजेस मतलब कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। तो इसके पास क्या होते हैं, जॉइंटेड लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी कि पैर, जॉइंटेड लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड योर जॉइंटेड अपेंडेजेस। अब देखो कितने पेयर, 3 पेयर तो इसके पास लेग्स के होते हैं एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच्ड टू द थॉरेक्स। थॉरेक्स क्या होता है बच्चों, आई विल टेल यू। जैसे यहां पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, हियर सी दिस पार्ट, इफ यू कैन सी दिस पार्ट, ये वेयर, या देखो इस इंसेक्ट में देखो थॉरेक्स क्या है, ये पार्ट, ये एरिया जहां पे विंग्स अटैच्ड है, ठीक है, जहां विंग्स अटैच्ड है दैट इज योर थॉरेक्स पार्ट। तो सिमिलरली कॉकरोच में भी जो है यहाँ पे दिस इज द थॉरेक्स, इतना, दिस पार्ट इज योर थॉरेक्स, ठीक है, जहां पे आपके विंग्स अटैच्ड हैं। ऑल राइट, सो अगर हम ओवरऑल बात करें तो कितने हो गए इसके, 6 जॉइंटेड लेग्स। हाउ मेनी, 6 तो इसके जॉइंटेड लेग्स हो गए और 2 पेयर ऑफ विंग्स हो गए। तो इसका मतलब ये चल भी सकता है और ये उड़ भी सकता है। माय गॉड, वेरी डरावना नो, ठीक है। सो इट कैन वॉक एंड क्लाइंब विद द हेल्प ऑफ
इट्स लेग्स। और बट बच्चों ये बात ध्यान रखना, ज़्यादा लंबी फ्लाइट नहीं ले सकते ये, थैंक गॉड। सो या दे कैन नॉट उड़ो बहुत ज़्यादा, ये वॉक ज़्यादा करते हैं। हम लोग कॉकरोचेस को बहुत कम उड़ते हुए देखते हैं, इसलिए कैन फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंसेज विद द हेल्प ऑफ इट्स विंग्स, ठीक है। और इनके पास दोनों तरीके की मसल्स होती हैं, एक तो वॉकिंग मसल्स और एक फ्लाइंग मसल्स। एक तो वॉकिंग मसल्स जो इनके लेग्स में होती हैं विच आर अटैच्ड टू द लेग्स, एंड फ्लाइंग मसल्स जो कि इनके थॉरेक्स में होती है विच अटैचेस टू द विंग्स, ऑलराइट। तो इस तरीके से इनको वॉकिंग में एंड फ्लाइंग में दोनों में जो है हेल्प मिलता है, ठीक है। नाउ मूविंग लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स, यानी कि जैसे कि हम वर्टिब्रेट्स जिनके पास क्या होता है बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। अब चलो, अब हम कुछ वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनमें लोकोमोशन किस तरीके से होता है, ठीक है। चलो, सबसे पहला होता है आपका फिश। बच्चे, फिश के बारे में वी नो ऑल दैट इट मूव्स इनटू द वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स फिन्स, है ना। उनके पास लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स क्या हो गए, फिन्स। तो फिन्स के पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, यस, दे आर द वर्टिब्रेट्स दैट लिव इनसाइड द वाटर, ओके, है ना। और दूसरा, इनकी बॉडी कैसी होती है बच्चों, स्ट्रीमलाइंड। कैसा होगा, स्ट्रीमलाइंड। डू कीप ऑन राइटिंग दीज पॉइंट्स व्हाटएवर आई एम हाईलाइटिंग, ठीक है ना। मिडिल में ब्रॉड होगी और नैरो होगी एंड्स पे, इस तरीके से। देखो, इस तरीके से होती है ना, मिडिल में तो मोटी होती है, राइट, इस तरीके से होती है ना फिश, ऐसी होती है ना, सी, मिडिल में तो ब्रॉड है, बाकी दो साइड्स पे जो है ये कैसी है, नैरो है, ठीक है। सो यस, राइट अबाउट इट, इसके बारे में लिख लो। अब बच्चों, इनका बॉडी ऐसा स्ट्रक्चर क्यों होता है, सो दैट दे कैन इजीली कट थ्रू द वाटर, ठीक है, वाटर के अक्रॉस ये इजीली क्रॉस कर जाएं, इसीलिए स्पेशली इनकी बॉडी को कैसा बनाया गया है, नेचर ने कैसा बनाया है, स्ट्रीमलाइंड, ऑलराइट, ठीक है। अब देखो, इनका जो इंटरनल स्केलेटन होता है ना बच्चों, वो बहुत ज्यादा किसका बना होता है, स्ट्रॉन्ग मसल्स का बना होता है। जो इंटरनल इनका क्या होता है, स्केलेटन होता है, दिस अटैच्ड टू स्ट्रॉन्ग मसल्स। द फिन्स टू हैव अ स्केलेटल एंड मस्कुलर सपोर्ट। और इनके जो ये फिन्स होते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, इनमें भी क्या होता है, स्केलेटल। बहुत गंदा बनाया है, आई नो, बट जस्ट टू यू नो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए, बहुत प्यारे ब्यूटीफुल विंग्स होते हैं, सॉरी फिन्स होते हैं हमारी फिशेस के। सो प्लीज डोंट माइंड दैट गंदा वाला, अच्छे अच्छे वालों पे ध्यान दो, ठीक है। इमेजिन जो भी ब्यूटीफुल कलर्स आप इमेजिन कर सकते हो। सो द फिन्स टू हैव स्केलेटल एंड मस्कुलर सपोर्ट, इट स्विम्स बाय कर्विंग इट्स बॉडी एंड टेल मसल्स, ठीक है। अपनी जो स्विमिंग करती है ना बच्चों, ये अपनी टेल, ठीक है, और जो है फिन्स के थ्रू कर पाती है ना। दीज कर्व्स कॉज इट्स बॉडी टू ट्विस्ट एंड टर्न, पुशिंग द फिश फॉरवर्ड। तो बेसिकली ये जो मसल्स हैं, तो what are they doing is they're changing their they're using their curvatures, okay, they're shifting what, they're shifting their position from one place to another, okay, from one over their body only, all right, and then they're helping it to cut the water, ठीक है, इस तरीके से, है ना। एंड उसकी वजह से क्या होता है, उनका अच्छा बैलेंस मेंटेन भी होता है, एंड दे स्विम विद द हेल्प ऑफ इट्स fins, है ना। एंड दे कैन इवन चेंज डायरेक्शंस, ओके, चेंज डायरेक्शन, बैलेंस इट्स बॉडी, ओके, एंड स्विम, ठीक है। सो इतना, इसको ये जो लाइंस अंडरलाइन है उनको लिख लो। नाउ सी गाइज, फिशेस जो हैं उनके पास कितने टाइप्स के फिन्स होते हैं, दो तरीके के, देखो, है ना। पेयर्ड फिन्स, पेल्विक एंड पेक्टोरल, और अनपेयर्ड कौन से होंगे, डॉर्सल, कॉर्डल एंड एनल। सो राइट इट डाउन कि फिशेस के पास दो तरीके के फिन्स होते हैं, कौन कौन से, पेयर्ड जिसमें आते हैं आपके पेल्विक एंड पेक्टोरल, एंड अनपेयर्ड डॉर्सल, कॉर्डल एंड एनल फिन्स, ओके, इनको लिख लो। अब बच्चों, जो अनपेयर्ड फिन्स होते हैं ना, वो किस मूवमेंट में हेल्प करते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, एंड टेकिंग टर्न्स। राइट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट। इस तरीके से दो कॉलम्स बना लो, पेयर्ड फिन्स एंड अनपेयर्ड फिन्स।
पेयर्ड फिन्स में लिखो कौन से, पेल्विक एंड पेक्टोरल, अनपेयर्ड में लिखो डॉर्सल, कॉर्डल एंड एनल, एंड देन उनका फंक्शन क्या है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट एंड इन टेकिंग टर्न्स, ऑल राइट, जो अनपेयर्ड होते हैं उनके लिए, ठीक है। एंड जो पेयर्ड फिन्स होते हैं वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है, एंड ऑल्सो मेंटेन दी पोजिशन ऑफ द फिश एट रेस्ट। कभी कभी हम देखते हैं ना कि एक्वेरियम्स वगैरह में एक ही जगह पर वो खड़ी होती हैं, बिल्कुल ऐसे अपना फिन को ऐसे ऐसे घुमाती रहती हैं, ठीक है, एंड देन दे आर स्टेबल एट देयर पोजीशन, ठीक है। तो वो उनका मतलब खुद को रोकने में बॉडी के और मेंटेन द पोजीशन ऑफ द फिश एट द रेस्ट और अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट में जो हेल्प कर रहा है वो क्या हेल्प कर रहा है बच्चों, विच पेयर ऑफ फिन्स, दी पेयर्ड फिन्स, यानी कि दी पेक्टोरल एंड पेल्विक, ऑल राइट, एंड ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ ब्रेक, ऑल्सो उनको रुकने में भी हेल्प करता है। Now a very interesting thing, बहुत important and interesting fact is the swim bladder, ठीक है बच्चों। swim bladder क्या करता है ना, एक air space होता है, क्या होता है ना, this present in most of the fishes, it can be filled with air or emptied out, filled with air or emptied out to move up and down in water, can you see। अब जैसे आपने देखा है whales को देखा है ऊपर आके एकदम से पानी ऐसे छोड़ती है ना, so how is it possible, because of the swim bladder, ठीक है। so I hope you got it कि fins जो हैं fishes they move with the help of fin, and how many different kinds of fins are there, right, ठीक है। so they have got paired and unpaired, ठीक है, और उनका फंक्शन कैसे होता है, अनपेयर्ड का फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड टर्न्स लेने के काम में, ठीक है, हेल्प करती है, और जो हमारे पेयर्ड फिन्स होते हैं वो उनको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, मेंटेनिंग द पोजीशन एट रेस्ट, एंड ऑल्सो अगर वो चल रही हैं तो सडनली उनको ब्रेक्स देना, ठीक है, उनको रोकना, ऑल राइट। नाउ मूविंग अहेड, सी दिस इज द डॉर्सल फिन, दिस इज द कॉर्डल फिन, ठीक है, क्या है, ये है आपका डॉर्सल, ये है आपका कॉर्डल, ओके, एंड ये है आपका पेल्विक। यहाँ क्या पढ़ा था बच्चों अपन ने, डॉर्सल, कॉर्डल एंड जो पेल्विक फिन है, ठीक है, कौन सा, डॉर्सल, जिसमें से डॉर्सल और कॉर्डल जो है आपका अनपेयर्ड, ओके, द डॉर्सल एंड कॉर्डल अनपेयर्ड है, देखो कोई पेयर नहीं ना, सिंगल सिंगल है ना, एंड देन कम्स योर पेल्विक, तो पेल्विक पेयर्ड होता है, एक यहाँ पे है और एक अपोजिट साइड दिख नहीं रहा है वहां पे होगा, ऑल राइट। देन योर एनल फिन, एनल फिन भी क्या होता है बच्चों, पेयर्ड होता है, एक यहाँ पे है एक अपोजिट साइड में, ठीक है, किसी के पास एक्वेरियम हो तो आज जाके देखना, ऑल राइट। एंड then comes the last is your pectoral fin or your pelvic fin, this again unpaired, okay। so yes, now moving ahead with your birds, अब फटाफट से देखते हैं बच्चों, birds के बारे में हमें पता है, birds uses their wings to fly, है ना, एक सिंगल पेयर होता है, कितना होता है, सिंगल, यानी कि दो विंग्स होते हैं, ठीक है, ओके। सो ये जो है वॉक भी कर लेती हैं और उड़ भी लेती हैं, लेकिन मोस्टली क्या करती हैं, दे टेंड टू फ्लाई, सो दे फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, ठीक है। और कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं बच्चों जो सिर्फ और सिर्फ वॉक ही कर सकती हैं, दे हैव गॉट लिम्स, ठीक है, ओनली वॉक, कुछ ऐसी होती हैं। अब कौन सी हैं, बर्ड्स सच एज डक एंड स्वॉन, है ना, अब ये स्विम भी कर सकती हैं, ठीक है। तो बर्ड्स देखो कितना सब कुछ करती हैं, दे कैन वेराइटी ऑफ बर्ड्स आर देयर व्हिच कैन वॉक, which can fly, which can swim, जैसे duck and swan है ना, तो ये क्या कर लेती हैं, they can swim with the help of their webbed feet, है ना, कैसी फीट होती है बच्चों इनकी, webbed feet, इस तरीके से होती है ना, कभी डक की फीट देखी है, इस तरीके से, है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनको वाटर को इजीली कट करने में हेल्प मिलता है, दे कैन इजीली इस तरीके से अंदर अंदर चलती जाती हैं एंड दे आर एबल टू स्विम, है ना। सो अब जैसे कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं बच्चों विच कैन नॉट फ्लाई बट दे आर गुड रनर्स, ठीक है, कौन कौन सी हो गया उसमें, आपका आ गया ऑस्ट्रिच एंड कीवी, ठीक है, विच कैन नॉट फ्लाई, सो यू कीप ऑन राइटिंग कि डक एंड स्वान जो है दे आर द काइंड ऑफ बर्ड्स विच कैन ओनली swim, okay, ostrich, kiwi, they cannot run, they cannot fly but they run, they are good runners, ठीक है। then birds that can have, birds जो है वो इसीलिए उड़ पाती हैं बच्चों क्योंकि उनके पास कैसी बोन्स होती हैं, what kind of bones, जो the birds who can take flight is because of the hollow bones they have got, कौन सी बोन्स होती हैं, hollow, है ना, लाइट वेटेड,
ओके, उसकी वजह से जो है हॉलो एंड लाइट वेटेड बोन्स, जिसकी वजह से ये उड़ पाती हैं, ओके। एंड उसके ऊपर विंग्स और फेदर्स जो हैं दे आर अटैच्ड ऑन टू दोज, ओके, सो दैट द विंग्स दे हेल्प देम टू फ्लाई, ओके। ये इतना लिखो। अब बच्चों बर्ड्स की जो बॉडी है वो कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड। कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड, विच हेल्प्स देम टू कट द विंड, ठीक है, जिससे कि स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। तो जैसे फिशेज में होती है स्ट्रीमलाइंड, दे हेल्प देम टू कट द वाटर। सिमिलरली बर्ड्स जो होती हैं उनमें भी कैसी बॉडी होती है? स्ट्रीमलाइंड, विच हेल्प देम टू कट द एयर, ओके, द विंड, ओके। अब देखो बर्ड्स में फ्लाइंग के टाइम पे दो तरीके की मूवमेंट है, कौन कौन सी? फ्लैपिंग एंड ग्लाइडिंग, ठीक है। कौन कौन सी? फ्लैपिंग एंड ग्लाइडिंग। फ्लैपिंग में क्या होता है बच्चों? अप एंड डाउन। क्या हो रहा है? विंग्स का मूवमेंट कैसा हो रहा है? अप एंड डाउन। किसके लिए? जिससे कि वो अपना मूवमेंट फॉरवर्ड की तरफ कर सके और बॉडी को बैलेंस कर सके, ठीक है। सो बेसिकली फ्लैपिंग मूवमेंट में क्या हो रहा है? अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? अप एंड डाउन मूवमेंट जो है वो बर्ड को आगे बढ़ने के लिए और अपनी बॉडी का बैलेंस एयर में मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है, ठीक है, उसमें हेल्प करता है, ठीक है। अब जैसे स्पैरो हो गया, मैना है, राइट। सो इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है बर्ड्स में, ऑलराइट। सो राइट इट डाउन। ऑलराइट, ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड। नाउ मूवमेंट इन योर स्नेक्स। स्नेक्स में कैसा मूवमेंट हो रहा है? ठीक है, स्नेक्स क्या होते हैं बच्चों? रेप्टाइल्स, जो कि किस तरीके से क्रॉल करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, है ना? देखा है? बाबा रे, मत देखना, डर लगता है ना? सो यू मस्ट ऑलवेज बी वेरी मच कॉशियस। ऐसा नहीं है भाई दिख गया और चले गए, राइट। एनीवेज दीज आर, देखो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं बच्चों जिनसे डिस्टेंस मेंटेन करना ही बेटर होता है, राइट। हाउएवर मोस्ट ऑफ दी स्नेक्स फाउंड इन इंडिया दे आर नॉट पॉइजनस, बट देन अगेन हमें कॉशियस रहना चाहिए, है ना। सो अब इनमें मूवमेंट कैसे हो रहा है बच्चों? स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम की वजह से, ठीक है। राइट इट डाउन। किससे मूवमेंट होता है इनमें? स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम, मसल्स की हेल्प से। कैसे? जो मसल्स होती है ना बच्चों, वो इनकी जो मसल्स होती है ना, दे आर कनेक्टेड टू द स्किन, ओके। कहाँ? लॉन्ग इनका जो बैकबोन होता है ना, दैट इज कनेक्टेड टू द रिब्स, बैकबोन एंड these muscles, they are interconnected with their backbone, ribs and the skin, okay। और देखो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हम लोग लेते हैं, I'll just draw it here for you, see, can you see कि जो स्नेक का बॉडी है ना, ये अलग अलग ऐसे कर्व्स में होता है, और हर कर्व जो है ना वो उसको जो है आगे पुश करने में हेल्प करता है, ठीक है। ईच एंड एवरी कर्व जो है इट गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश। कैसा पुश? फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड को अगर इसको आगे बढ़ना है तो ये अगेंस्ट, यानी कि इधर जो है इनका प्रेशर लगता है, ऐसे ये आगे की तरफ मूव करते हैं, ओके, ठीक है। एंड ये जो मूवमेंट है ना, ये बच्चों बहुत ज़्यादा क्विक होता है, वेरी फास्ट। कैन यू सी स्नेक्स जो है बहुत जल्दी क्रॉल करते हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग, जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, ये मोशन जो है दिस इज वेरी क्विक व्हेन इट कम्स टू द स्नेक। द डाउन स्ट्रोक, जो विंग्स, ओके, एंड यस, तो किस तरीके से होता है? किस तरीके से होगा बच्चों? ये नीचे की तरफ इसको क्या करता है? पुश करेगा, ओके, नीचे की तरफ इसको क्या करेगा? पुश करेगा ग्राउंड की तरफ, एंड देन अपोजिट डायरेक्शन में जो है पुश करता है ग्राउंड को। जैसे इफ आई एम स्टैंडिंग हियर सपोज लाइक दिस, ठीक है, तो इस तरीके से ये पुश होगा एंड स्नेक आगे बढ़ जाता है। तो हमेशा क्या होता है? पीछे की तरफ पुश लगता है एंड द स्नेक कीप्स ऑन मूविंग फॉरवर्ड। All right, so this was about our lecture on the movement in animals, ठीक है बच्चों। So just a minute, yes, okay, so ये था हमारा आज का lecture on the movement। डिफरेंट टाइप्स के मोशंस के बारे में हमने पढ़ा बच्चों, डिफरेंट मूवमेंट्स पढ़ी हमने कि इनवर्टिब्रेट्स में कैसे हैं, वर्टिब्रेट्स में कैसे हैं, राइट फ्रॉम
सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कैसा मोशन है, राइट, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ना. सो येस, नाउ इफ़ यू लाइक द वे I teach, if you like biology, okay, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, and if you do, okay, if you do in case, so please hit that like button, ठीक है, उसको दबा देना, so that you know I get to know, okay, you guys are actually enjoying biology as a subject when it comes to me, all right, and also do hit the subscribe button. अगर अभी तक subscribe नहीं किया है Talking Textbooks के channel को तो subscribe भी कर लो. If you are really finding it helpful for you guys, you can even share it with your friends, and also hit that bell icon so that you never miss an update from the Talking Textbooks Koda Live, ठीक है. So because here we are getting you prepared for every each and every possible for your each and every पॉसिबल सब्जेक्ट जैसा भी आपका है, ठीक है, हर किसी के लिए जो है टीटीबी आपको प्रिपेयर करवा ही रहा है फॉर स्कूल एग्जामिनेशंस एंड एवरी पॉसिबल एग्जामिनेशन. सो द टीम ऑफ टीटीबी इज ऑलवेज देयर टू गाइड यू. सो येस, स्टे ट्यून्ड, है ना. एंड बाकी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, ठीक है. आई होप यू लाइक दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन अपना ध्यान रखिए, ऑलराइट, एंड कीप ऑन स्टडिंग. लव यू ऑल गाइज. बाय बाय, टेक केयर, सी यू.